Okay. Dear class 10th students, be ready with your economics book. Keep in front of you and keep your economics copy also, notebook also. Sit with a pen and pencil. We shall start second lesson. Name of the lesson is Sectors of Indian Economy. In class 9th also, in economics, you have studied about the 3 different sectors of economy. Primary sector, secondary sector, and tertiary sector. Now we are going to study the same topic but in more detail. Aman Krishna, Anirudh, are you listening? Aman Krishna, Yes. you start reading first paragraph. Yes. Sectors of economy, page 19. Anirudh, you're not ready with your book? मैम इकोनॉमिक्स में Jyoti Kumari, Kartik, Mehul, any one of you start reading first paragraph. Ma'am, I can. Yes. There are many activities that are undertaken by directly using natural resources. Take, for example, the cultivation of cotton. It takes place within a crop season. For the growth of the cotton plant, we depend mainly but not entirely on natural factors like rainfall, sunshine, and climate. The product of the activity, cotton is natural product. Similarly, in the case of activity like dairy, we are dependent on the biological process of the animals and ability of fodder, etc. The products here, milk also is natural product. Similarly, minerals and ores are also कहाँ से natural. पढ़ रहे हो तुम? एक मिनट रुको, हरिराम. On which page number are you? मैम फर्स्ट पेज नंबर पे तो इंट्रोडक्शन दिया हुआ है. हाँ ठीक है. And let us look at the pictures. Have you started Ma'am, from can I here? read page 19? हाँ. Let us look at these pictures. Chapter 2. मैम लेट अस लुक एट Yes, दिस. start And reading. chapter You will Chapter find two the Economics chapter 2. Let us look at these pictures. You will find that people are engaged in various economic activities. Some of these are activities producing goods, some others are producing services. These activities are happening around us every minute, even as we speak. How do we understand these activities? One way of doing this is to group them, classify them using some important criterion. These groups are also called sectors. हाँ, तो कौन से लोग किस काम में लगे हुए हैं, इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? इसको आइडेंटिफाई करने के लिए ना हम उसको ग्रुप में बना लेते हैं, ग्रुप तैयार कर लेते हैं. अगर हम देख रहे हैं कि वो सारे नेचुरल रिसोर्सेस के साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व होके अपनी ये एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उसको हम प्राइमरी प्रोडक्ट में रखते हैं. अगर प्राइमरी प्रोडक्ट को और वैल्यू एडिशन करने के लिए वो लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग को हम किस में रख देते हैं? सेकेंडरी ऑक्यूपेशन में रख देते हैं. और बाकी एक थर्ड कैटेगरी ऐसा भी है जहां सिर्फ सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है. तो तरह तरह के सर्विसेज हैं, जैसे एक कॉबलर है, एक कारपेंटर है, एक टीचर, एक डॉक्टर, एक बैंकर है ना, एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करने वाला, ट्रांसपोर्ट में काम करने वाला, बिजनेस करने वाला. तो ये सारे लोग जो हैं, जो सिर्फ सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उनको हम किस सेक्टर में रखते हैं? बताओ, नाम बताओ. टर्शरी सेक्टर. ठीक है ना. ये 9th में भी थोड़ा सा शॉर्ट में तुम लोग पढ़े थे इस लेसन को, है ना. Yes, ma'am. हाँ, इकोनॉमिक एक्टिविटी जहाँ पढ़ाया जा रहा था, तो वो है प्राइमरी ऑक्यूपेशन, सेकेंडरी ऑक्यूपेशन और टर्शरी ऑक्यूपेशन तुम लोग पढ़े थे. तो इसी को कहते हैं प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी और टर्शरी एक्टिविटी. या फिर इसको अगर ग्रुप में डिवाइड करते तो इसको सेक्टर्स कहेंगे. प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर. तो एक ग्रुप में हम डिवाइड करते हैं. एक्टिविटी को अलग कैसे करते हैं? बाय ग्रुपिंग देम.
है ना, by grouping them. If people are engaged in gathering from the nature direct, for example, if people are doing agriculture, fishing, mining, forestry, तो इन सब चीजों में क्या दिखाई दे रहा है कि ये नेचर में डायरेक्टली इन्वॉल्व होके और नेचर से जो मिल रहा है उसी को ये गैदर कर रहे हैं, ले रहे हैं, तो इसको हम प्राइमरी प्रोडक्ट में रख देते हैं। लेकिन उसी प्राइमरी प्रोडक्ट को अगर और भी यूजफुल बनाते हैं मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू, मतलब इंडस्ट्री या फैक्ट्री में भेजते हैं, तो उस काम को हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी सेक्टर कहेंगे। तो समझ गए कि रॉ मटेरियल जो हम लेते हैं सीधा वो प्राइमरी प्रोडक्ट में आ गया, और दूसरे में क्या है कि रॉ मटेरियल को मैन्युफैक्चरिंग करके ज्यादा उसको यूजफुल बनाते हैं इंडस्ट्री के थ्रू, तो वो हो गया तुम्हारा सेकेंडरी सेक्टर। और एक थर्ड सेक्टर है जिसमें किसी सामान का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, देयर इज नो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स बट ओनली प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज। ओके, तो जहां सिर्फ सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है तो उसमें तुम बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हो, जैसे सर्विसेज ऑफ कॉबलर, कारपेंटर, टीचर, डॉक्टर, बैंकर, प्रोफेसर, people engaged in business activity, transportation, communication, etc. है ना, तो ये सारे जो सिर्फ सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इसको हम टर्शरी सेक्टर में रखते हैं। ठीक है, तो ये ब्रॉडली 3 सेक्टर हो गया, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। नेक्स्ट पेज में आ जाओ। यस मैम। तो जैसे है ना कि व्हाट इज सेक्टर, तो ग्रुपिंग द इकोनॉमिक एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू अ क्राइटेरिया इज नोन एज सेक्टर्स। ठीक है ना, अब यहाँ पिक्चर में क्या क्या दिया हुआ है देख रहे हो ना, कि एक मिट्टी से ब्रिक्स बना रहे हैं। ठीक है ना, देख रहे हो ना, पहला पिक्चर मिट्टी से क्या बन रहा है, ब्रिक्स बन रहा है, तो ये किस में आएगा तुम बताओ। मैम सेकेंडरी सेक्टर। ये आएगा सेकेंडरी सेक्टर में। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ वैल्यू एडिशन हो रहा है, ये एक तरह का मैन्युफैक्चरिंग हो गया कि क्ले को कन्वर्ट कर दिए ब्रिक्स में, तो ब्रिक्स बनाना, फिर उसको उसके पूरे प्रोसेस से उसको रेडी करना, तो ये मैन्युफैक्चरिंग का एग्जांपल हो गया। एक पिक्चर में देखो, यहाँ एक लेडी अपने शॉप में बिजनेस में लगी हुई है, कपड़े का बिजनेस है मान लो, रेडीमेड गारमेंट्स का, तो वो किस में आएगा बताओ, टर्शियरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर। ठीक है, फिर एक है कि लग रहा है जैसे कोई कोरियर सर्विस वाला कोई है, या कोई कुछ ला करके डिलीवर कर रहा है, दे रहा है सामान, तो वो भी किस में आ गया, टर्शरी सेक्टर में आ गया। एक कुली है, कुली तो जो सामान ढोता है, पोर्टर है, जिसको पोर्टर कह सकते हैं, तो वो भी टर्शरी सेक्टर में आ गया, वो भी तो सर्विसेज ही दे रहा है। ठीक है ना, एक और पिक्चर दिया है सबसे लास्ट में, वो क्या है, एग्रीकल्चर का है, जहाँ कॉटन कल्टीवेशन हो रहा है मान लो, है ना, तो कॉटन कल्टीवेशन हो रहा है, तो कौन से सेक्टर में जाएगा बोलो, प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में। ठीक है, नेक्स्ट पेज में आ जाओ, है ना। तो यहाँ देखो, there are many activities that are undertaken by directly using natural resources. Take for example cultivation of cotton, है ना, देखो हम पहले भी बता चुके कि डायरेक्टली अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके अपना जो एक्टिविटी है वो कर रहे हैं, तो वही आता है प्राइमरी ऑक्यूपेशन में। तो इसमें सब कुछ आ गया, जैसे कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, ठीक है, माइनिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स, फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री मीन्स फॉरेस्ट से रिलेटेड कोई भी वर्क। फॉरेस्ट में हम क्या क्या करते हैं, जैसे मान लो हम प्लांटेशन एग्रीकल्चर कर रहे हैं, फॉरेस्ट में रबर को कलेक्ट कर रहे हैं, रबर का लैटेक्स कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो किस में आएगा, वो भी प्राइमरी प्रोडक्ट हो गया। या फ्रूट्स, नट्स, लीव्स, बार्क, ये सब हम इकट्ठा कर रहे हैं फॉरेस्ट से, या रूट्स, बहुत चीज जो भी फॉरेस्ट का प्रोडक्ट है उसको हम गैदर कर रहे हैं, ये फॉरेस्ट गैदरिंग कहते हैं। तो ये फॉरेस्ट से डायरेक्टली हम जो नेचुरल रिसोर्स ले रहे हैं, तो वो भी किस में आ जाएगा, प्राइमरी प्रोडक्ट में आ गया। ठीक है ना, माइनिंग है, फिशिंग, फिशिंग में क्या करते हैं, ऑलरेडी द फिश आर इन द वाटर, वी आर जस्ट कैचिंग इट, सो इट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट। ठीक है ना, अब उसी फिश को, अब एक और एग्जांपल देखो, जो फिश कैच किए ओशन से या रिवर से, उसी फिश को अगर हम प्रोसेसिंग करते हैं, उसको क्लीनिंग कटिंग करके रेफ्रिजरेट कर देते हैं, तो ये रेफ्रिजरेट करके पैकिंग कर दिया जाता है ना,
टिन पैक कर देते हैं, तो वो क्या हो गया, तब वो मैन्युफैक्चर्ड आइटम हो गया, ठीक है, क्योंकि वहां कुछ वैल्यू एडिशन कर दिए। अब उसी फिश को अगर हम ट्रांसपोर्ट करके ले जा रहे हैं कहीं पर एक्सपोर्ट करने के लिए, कहीं मार्केट में सेल करने के लिए, तो ट्रांसपोर्टेशन में जितने लोग लगे हुए हैं वो क्या हो गया, वो टर्शरी सेक्टर में आ गया। तो एक फिश से तुम एग्जांपल देख रहे हो कि एक फिशिंग में ही तीनों तरह का तुमको सेक्टर नजर आएगा, कि जहां फिश कैच हो रहा है, वो डायरेक्टली फिश जहां पकड़ रहे हैं, वो हो गया तुम्हारा प्राइमरी सेक्टर। और फिश को क्लीनिंग, कटिंग ये सब करके, रेफ्रिजरेट करके, उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव डाल के और पैकेजिंग कर देते हैं, तो ये पैकेजिंग करने का जो हुआ सिस्टम प्रोसेस, वो तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग में आ जाएगा, सेकेंडरी ऑक्यूपेशन हो गया। और वही अगर एक्सपोर्ट करने के लिए दूसरी जगह हम भेज रहे हैं, किसी मार्केट में भेज रहे हैं, तो उसमें जितने लोग लगे हुए हैं वो हो गया टर्शरी। समझ गए ना? तो एक रॉ मटेरियल जहां से मिला ना, जैसे तुम एग्रीकल्चर में वीट का एग्रीकल्चर हो रहा है, कहीं वीट का कल्टीवेशन हो रहा है, तो वीट कल्टीवेशन करना तो प्राइमरी का एग्जांपल हो गया। लेकिन उसी वीट को हम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में ले जा करके और उसको फ्लोर में कन्वर्ट कर देते हैं, उसकी पैकेजिंग कर देते हैं, तो वो किसका काम हो गया, वो सेकेंडरी सेक्टर का काम हो गया। और फिर उसको जब मार्केट में ले जा रहे हैं बेचने के लिए, सेल करने के लिए, तो इस प्रोसेस में जितने लोग लगे हुए हैं वो हो गया, क्या हो गया बताओ, टर्शियरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर हो गया। ठीक है, तो एक ही चीज के एग्जांपल से हम तीनों सेक्टर का एग्जांपल निकाल सकते हैं, ठीक है ना? अब आगे देखो इसमें कि कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप तो एक प्राइमरी ऑक्यूपेशन हो गया। फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन प्लांट वी डिपेंड मेनली, यस बोलो मैम। अगर एक ही इंसान अगर मैम कोई चीज उगा रहा है और उसको यूज भी कर रहा है और फिर मैम सेल भी कर दे रहा है, तो मैम वो कौन सा सेक्टर हुआ? वो तीनों में, उसका तीनों में आएगा, तीनों ग्रुप में उसका नाम आएगा, समझ गए ना? यस मैम। क्योंकि हो सकता है ऐसा, जैसे शुगर केन का कल्टीवेशन भी करते हैं फार्मर, और अपने ही फार्मलैंड के पास शुगर मिल भी लगा लेते हैं, तो मिल में शुगर केन से कन्वर्ट कर रहे हैं, शुगर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो वो मैन्युफैक्चरिंग मतलब सेकेंडरी में आ गया, और मार्केट में पहुंचा रहे हैं तो वो टर्शरी में आ गया। मतलब एकदम जिस्ट में यही जान लो कि अगर हम डायरेक्टली नेचर से कोई चीज गैदर कर रहे हैं तो वो प्राइमरी प्रोडक्ट होता है, और उसमें अगर वैल्यू एडिशन करते हैं तो वो सेकेंडरी प्रोडक्ट हो गया, और अगर हम कोई सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो हो गया टर्शरी सेक्टर या टर्शरी ऑक्यूपेशन। यही से देखो फर्स्ट पैराग्राफ में, हाँ, द प्रोडक्ट ऑफ दिस एक्टिविटी कॉटन इज अ नेचुरल प्रोडक्ट। Similar in the case of an activity like dairy, we are dependent on the biological process of the animal and availability of fodder, etc. The product here, milk, is also a natural product. Primarily, minerals and ores are also natural products. When we produce a good by exploiting natural resources, it is an activity of the primary sector. Why primary? This is because it forms the base for all other products that we subsequently make. Since most of the natural products we get are from agriculture, dairy, fishing, forestry, this sector is also called agricultural and related sector. ठीक है ना? मतलब एग्रीकल्चरल एंड रिलेटेड सेक्टर मतलब सारे ये प्राइमरी प्रोडक्शन में या प्राइमरी सेक्टर में आ गए। मैम तो प्राइमरी सेक्टर इज आल्सो नोन एज एग्रीकल्चर बेस्ड सेक्टर। हाँ, एग्रीकल्चर सेक्टर ब्रॉडली कहते हैं क्योंकि इसका ज्यादा हिस्सा एग्रीकल्चर में ही है ना? लेकिन माइनिंग भी है, माइनिंग भी है। हाँ, जैसे मिनरल जो हम एक्सकैवेट करते हैं, जमीन के अंदर से मिनरल निकालते हैं, तो मिनरल निकालने का ये जो प्रोसेस है, ये काम है, तो नेचर में वो ऑलरेडी है पहले से, जिसको हम निकाल रहे हैं, गैदर कर रहे हैं, तो ये भी प्राइमरी ऑक्यूपेशन हो गया। माइनिंग इज ऑल्सो अ प्राइमरी ऑक्यूपेशन, बट व्हेन द सेम मिनरल are sent to the industries and machine tools are made out of that mineral, then it becomes the secondary occupation, or secondary sector of occupation. समझ गए ना? तो प्राइमरी सारा चीज जो हम
सेकेंडरी सेक्टर में वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, वो कहाँ से आ रहा है? सब तो प्राइमरी प्रोडक्ट है, सारे के सारे प्राइमरी प्रोडक्ट है, चाहे वो आयरन ओर हो, वीट, राइस, टी, कोई भी चीज ले लो, कॉटन, वो सब प्राइमरी प्रोडक्ट है। और उसको इंडस्ट्री में ले जाके हम चाहे तो कॉटन से क्लॉथ बना ले, मिनरल से मशीन टूल बना ले, कार बना ले, है ना। तो ये सब हो गया सेकेंडरी का एग्जाम्पल। और उसी को फिर उसी से रिलेटेड जितने भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो आ गया tertiary। टर्शियरी सेक्टर में, ठीक है ना। तो गुड्स का जो प्रोडक्शन है ना वो प्राइमरी में भी होता है, जो कि प्राइमरी प्रोडक्ट कहे जाते हैं या नेचुरल रिसोर्स कहे जाते हैं। और दूसरा क्या है? सेकेंडरी प्रोडक्ट, उसमें भी सामान का ही प्रोडक्शन हो रहा है। और तीसरा सेक्टर क्या है? इसमें किसी सामान का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ सिर्फ सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है। एक टीचर है, हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये हम टर्शरी सेक्टर में आ गए। तुम्हारे पापा डॉक्टर हैं जैसे मान लो, तो वो पेशेंट की सेवा कर रहे हैं, तो उनका काम भी सर्विसेज प्रोड्यूस करना हो गया, तो वो भी टर्शरी सेक्टर में आ गए। बैंक में काम कर रहे हैं, कोई कारपेंटर है, कोई फर्नीचर इंडस्ट्री नहीं, इंडस्ट्री है तो auto वो सेकेंडरी driver। सेक्टर में आए, है ना। तो कारपेंटर का काम है, कबलर का काम है, ये सब के सब जो भी सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं वो क्या दे रहे हैं? ये दे रहे हैं, मतलब सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो और एग्जांपल देखो, यहाँ पे तुमको ना बहुत तरह के एग्जांपल दे के समझाया हुआ है, तुमको शॉर्ट स्टोरीज भी मिलेंगे आगे, है ना। यहाँ आप सेकेंडरी में आ जाओ। लास्ट लाइन में क्या यहाँ देखे कि कुछ एग्जांपल दिए, प्रोडक्ट्स वी गेट आर फ्रॉम एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री। दिस सेक्टर इज also called agricultural and related sector। प्राइमरी सेक्टर को हम एग्रीकल्चरल सेक्टर और रिलेटेड सेक्टर भी कहते हैं। एक डेयरी का यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है, डेयरी का एग्जांपल देखो, DAIRY डेयरी, मतलब क्या हो गया कि जहां मिल्क का प्रोडक्शन हो रहा है। तो जब तक मिल्क का हम गैदरिंग कर रहे हैं, मिल्क को हम इकट्ठा कर रहे हैं, तो वो मिल्क जो है ना डायरेक्टली वो तो प्राइमरी प्रोडक्ट हो गया, वो प्राइमरी ऑक्यूपेशन में आ गया। मिल्किंग ऑफ एनिमल्स जो है वो प्राइमरी प्रोडक्ट में आ गया। लेकिन वही मिल्क जब हम देखते हो ना, यहाँ सुधा का इंडस्ट्री है कि नहीं, उसी मिल्क का कर्ड बना लिए, स्वीट्स बना लिए, बहुत सारे आइटम बना लिए, तो जब इसको हम मैन्युफैक्चरिंग में ले आएंगे तो मिल्क क्या है? प्राइमरी सेक्टर का प्रोडक्ट है। और कर्ड, स्वीट्स, बटर, घी, ये सब क्या हो गया? सेकेंडरी सेक्टर का ये है, प्रोडक्ट है, ठीक है। और उसी को ट्रक में लोड करके जब एक एक रिटेल शॉप में जाके सप्लाई करते हैं तो वो हो गया टर्शरी सेक्टर। अब इसमें जितने लोग लगे हुए हैं, ट्रांसपोर्टेशन से लेकर के बिजनेस से लेके, वो सब किस में आ जाएंगे? टर्शरी सेक्टर में, ठीक है ना। तो डेयरी में मिल्क हो गया प्राइमरी, और बाकी जो मैन्युफैक्चर्ड आइटम हो गए डेयरी के वो सेकेंडरी में हो गया, और बाकी जो उससे सर्विसेज रिलेटेड है वो टर्शरी में, हाँ टर्शरी में। अब दूसरा देखो, द सेकेंडरी सेक्टर covers activities in which natural products are changed into other forms through ways of manufacturing that we associate with industrial activity. It is the next step after primary। मतलब प्राइमरी में जो प्रोडक्ट हमको मिला उसको हम नेक्स्ट स्टेप में ले जाएंगे, उसको और भी यूजफुल बनाना चाहेंगे, तो वो किस में हो जाएगा? इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में आ जाएगा। The product is not produced by nature but has to be made, and therefore some process of manufacturing is essential। This could be a factory, a workshop or at home, है ना। होम के अंदर भी हम करते हैं, ठीक है ना। मान लो कि हमने मिल्क खरीद के लाया, तो मिल्क तो लाया तो वो प्राइमरी हो गया, प्राइमरी प्रोडक्ट हो गया। उसी मिल्क से घर के अंदर अगर हम कुछ मिठाई और कुछ घी कुछ भी बना लेते हैं तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग हो गया। तो घर के अंदर भी मैन्युफैक्चरिंग होता है, ऐसा नहीं है कि फैक्ट्री में ही मैन्युफैक्चरिंग होगा। अब देखो, फॉरेस्ट से लंबरिंग होती है, लंबरिंग स्पेलिंग मालूम है? LUMBERING। फॉरेस्ट एक्टिविटी में लंबरिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। लंबरिंग का मतलब होता है कि जंगल से
वुड का कटिंग करना, है ना, उसको लॉग्स में डिवाइड करना, लॉग्स बनाना, उसको स्प्लिटिंग करना और उसको फिर ट्रांसपोर्ट करना, ये सब प्रोसेस को लंबरिंग कहते हैं। तो जंगल से वुड को काटने के प्रोसेस को तो हम ये कर देंगे, कहेंगे कि वो हम सीधे जंगल से कोई सामान ले रहे हैं, फॉरेस्ट का वुड प्रोडक्ट या कोई भी प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो वो प्राइमरी प्रोडक्ट हो गया। बट व्हेन द सेम लॉग is transported to a furniture industry and is converted into bed, sofa, stool, chair, etc., then these are known as manufactured item or secondary product. डिफरेंस समझ गए ना, कि अगर फॉरेस्ट से हम लकड़ी काट रहे हैं तो वो हो गया तुम्हारा क्या, प्राइमरी प्रोडक्ट। उसी लकड़ी को फर्नीचर इंडस्ट्री में भेज दिए, जहाँ की टेबल, सोफा, चेयर, बेड सब बन रहा है, तो ये सब प्रोडक्ट ना सेकेंडरी प्रोडक्ट के एग्जांपल हो गए, और फर्नीचर इंडस्ट्री को हम सेकेंडरी एक्टिविटी मानेंगे। समझ गए? Yes, या ma'am. देखो, फॉर एग्जांपल, यूजिंग कॉटन फाइबर फ्रॉम प्लांट वी स्पिन यार्न वीव क्लॉथ। ठीक है, अब कॉटन तो एग्रीकल्चर से ला रहे हैं, तो कॉटन एक प्राइमरी प्रोडक्ट हो गया। कॉटन का कल्टीवेशन करने में जितने लोग लगे हुए हैं उनके ऑक्यूपेशन को हम प्राइमरी ऑक्यूपेशन कहेंगे। लेकिन वही कॉटन जब ये मैन्युफैक्चरिंग सेंटर में आ गया, उसको हम स्पिन करके धागा बना लिए, यार्न बना लिए। यार्न मतलब धागा, YARN। यार्न मीन्स थ्रेड। थ्रेड पहले बनता है, थ्रेड बनने के बाद फिर उसकी वीविंग करते हैं। वीविंग मतलब कपड़े की बुनाई करते हैं। बुनने के बाद कपड़ा तैयार हो जाता है। तो यार्न बनाना या वीविंग क्लॉथ, ये सब किसमें आ जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग में आ जाएगा। Using sugar cane as a raw material, we make sugar or gur. We convert earth into bricks and use bricks to make houses. ठीक है, अब अर्थ मतलब मिट्टी, यहाँ मतलब है कि सॉइल को हम यूज करते हैं ब्रिक्स बनाने में। सॉइल से क्या बनाते हैं, ईंट बनाते हैं। तो ईंट भी क्या हो गया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आ गया। और ईंट को इस्तेमाल करके जब बिल्डिंग बनाते हैं तो वो भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ही हुआ। कंस्ट्रक्शन जहाँ पे हो रहा है वो भी क्या है, मैन्युफैक्चरिंग है, मतलब वो भी सेकेंडरी ऑक्यूपेशन में आएगा, क्योंकि वहां भी हम वैल्यू एडिशन करके कोई ज्यादा यूजफुल चीज बना रहे हैं। तो हमेशा प्राइमरी प्रोडक्ट में वैल्यू एडिशन जब करते हैं, उसको ज्यादा यूजफुल बनाते हैं, तो उसको हम कहते हैं सेकेंडरी प्रोडक्ट, और उस काम को कहेंगे सेकेंडरी एक्टिविटी। Since this sector gradually become associated with the different kinds of industries that came up, it also called industrial sector. ठीक है ना, ये बहुत सारे, बिल्डिंग इंडस्ट्री भी कहा जाता है ना, फर्नीचर इंडस्ट्री, बिल्डिंग इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो इसलिए इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर कहते हैं, सेकेंडरी सेक्टर को। सेकेंडरी सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज industrial sector. After primary and secondary, there is a third category of activity that falls under tertiary sector and is different from the above two. ठीक है, अब tertiary sector जो तीसरा सेक्टर है वो ऊपर वाले दोनों से अलग है। These are activities that help in the development of the primary and secondary sector. अब देखो, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में जो एक्टिविटी चल रहा है उसको, उसका काम नहीं चल सकता है बिना टर्शरी सेक्टर से हेल्प लिए हुए, उसका काम नहीं चल सकता है। कैसे, कुछ एग्जांपल से समझो। जैसे अगर कोई फार्मर एग्रीकल्चर कर रहा है तो उसे पेस्टिसाइड चाहिए, वहां पे अपने गांव में, अपने विलेज में लाने के लिए सीड्स चाहिए, बहुत सारे सामान चाहिए, तो वो तो टर्शरी सेक्टर का हेल्प लेगा ना ट्रांसपोर्टेशन के लिए, है ना। वैसे वो सामान सेल करने वाले से इसका कांटेक्ट होगा, फिर उन सामानों को अपने फार्म लैंड तक ये ट्रांसपोर्ट करके ले आएगा, तो यहाँ ट्रांसपोर्टर्स का हेल्प लेना पड़ेगा। तो प्राइमरी सेक्टर हो या सेकेंडरी सेक्टर हो, इन दोनों ये दोनों सेक्टर जो हैं वो टर्शरी सेक्टर पे डिपेंडेंट है। सेकेंडरी से अब एग्जांपल देखो। सेकेंडरी सेक्टर में मान लो एक आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, जैसे बोकारो का आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ले लो। तो बोकारो के आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में कोल भी चाहिए, लाइमस्टोन चाहिए, आयरन ओर चाहिए, कुछ एल्यूमिनियम, कुछ मैग्नीज, ये सब कुछ चाहिए।
तो ये सब कहाँ से आएगा? ये हम माइनिंग सेंटर से जाकर के ट्रांसपोर्ट करके इन सामानों को लाते हैं, और फिर इंडस्ट्री में जो शीट्स रॉड्स बन के तैयार हो जाते हैं, मैन्युफैक्चर्ड हो जाते हैं जो आइटम, उनको फिर मार्केट में सप्लाई करने के लिए फिर हमें ट्रांसपोर्टेशन का सहारा लेना पड़ता है। और ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं, कई कई तरह के कम्युनिकेशन सिस्टम, सब चीज की जरूरत होती है, जो कि सब टर्शरी सेक्टर में आते हैं। ठीक है ना? तो कहने का मतलब ये कि फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, द हेल्प ऑफ टर्शरी सेक्टर इज वेरी वेरी नेसेसरी, अनएवॉइडेबल है एकदम, उसका हेल्प तो चाहिए ही चाहिए। These activities by themselves do not produce a good, but they are an aid or a support for the production process. For example, goods that are produced in primary or secondary sector would need to be transported by trucks or trains and then sold in wholesale and retail shops. At times, it may be necessary to store these in godowns. ठीक है ना? कई बार क्या करते हैं कि जो सामान हमारे मैन्युफैक्चर्ड हुए उसको हमको गोडाउन में स्टोर करके भी रखना पड़ता है। तो ये स्टोरेज का काम जो दे रहा है, जो स्टोरेज का जो फैसिलिटी दे रहा है या सर्विसेज दे रहा है, तो वो किस सेक्टर में आ गया? वो भी टर्शरी में आ गया। We also may need to talk to others over telephone or send letters or borrow money from bank, है ना? इन सब प्रोसेस में हमको कई बार टेलीफोन पे बात करने की जरूरत पड़ेगी, लेटर भेजने की जरूरत पड़ेगी, या बैंक से लोन भी लेना पड़ेगा। तो ये सब काम किस में आ जाएंगे? टर्शरी सेक्टर में। टू हेल्प प्रोडक्शन एंड ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज। अब यहाँ एग्जांपल देखो कि टर्शरी सेक्टर में क्या क्या एग्जांपल है। ट्रांसपोर्ट, storage, communication, banking, trade are some examples of tertiary activities. Since these activities generate services rather than goods, the tertiary sector is also called the service sector. ठीक है? हर एक सेक्टर का एक दूसरा नाम भी दिया हुआ है। जैसे टर्शरी सेक्टर को और क्या कहते हैं, बोलो? सर्विस सेक्टर। हाँ, सर्विस सेक्टर कहते हैं कि इसमें सर्विस दे रहे हैं। अब देखो एक छोटा सा काम देखो, लेकिन कितना इंपॉर्टेंट काम है। ये रोड के किनारे कॉबलर बैठे रहते हैं ना, और किसी का स्लीपर या शू कुछ डैमेज हो गया और उसको बहुत प्रॉब्लम हो रही है चलने में, तो वो तुरंत से वहां जाके रिपेयर करा लेता है। तो वो कॉबलर ने क्या दिया? सर्विस प्रोवाइड किया। वो कोई सामान नहीं प्रोड्यूस कर रहा है, तुम्हारे ही सामान को वो ठीक कर दिया, उसने सर्विस प्रोवाइड किया। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है, और ये सर्विस सेक्टर में आ गया। तो सर्विस सेक्टर का मतलब टर्शरी सेक्टर। ठीक है ना? तो फिर एक पैराग्राफ और कर लें हम लोग, है ना? सर्विस सेक्टर also includes some essential services that may not directly help in the production of goods. For example, we require teachers, doctors, and those who provide personal services such as washermen, barbers, cobblers, lawyers, and people do administration and accounting works. In recent times, certain new services based on information technology such as internet cafe, ATM booths, call centers, software company, etc. have become important. अब ये सभी टर्शरी सेक्टर के नए एग्जाम्पल हो गए। कौन कौन से? आपको इंटरनेट कैफे, ATM बूथ्स, कॉल सेंटर्स, सॉफ्टवेयर कंपनीज, ये सब नए एग्जाम्पल हो गए। ठीक है? और इसके अलावा वॉशरमैन, बार्बर, ये जो सर्विसेज दे रहे हैं। कोर्ट में जाओ तो लॉयर्स की सर्विसेज लेनी पड़ती है। फिर यहाँ पर IAS IPS ऑफिसर्स हैं, रेवेन्यू सर्विस में हैं, बहुत सारे सर्विसेज में लोग हैं, कस्टम में हैं, रेवेन्यू में हैं, तो सब एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क संभाले हुए हैं। तो वो किस में आएंगे? वो सब के सब सर्विस सेक्टर या टर्शरी सेक्टर में आएंगे। ठीक है? तो 4-5 मिनट और बचा हुआ है, थोड़ा इसका देख लो। एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर ग्रुप्ड इनटू 3 डिफरेंट कैटेगरीज आर हाईली इंटरडिपेंडेंट। ये तीनों कैटेगरी जो है ना, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टर्शरी, ये तीनों एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है ना? एक के काम के लिए दूसरे से रिलेट होना एकदम जरूरी है ना? वो डिपेंडेंसी है ही।
और उसी का कुछ यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एक एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है, पहला कॉलम में देखो कि इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ फार्मर्स रिफ्यूज टू सेल शुगर केन टू अ पर्टिकुलर शुगर मिल। ठीक है, एक पर्टिकुलर शुगर मिल को फार्मर अगर रिफ्यूज कर दे शुगर केन बेचने से, द मिल विल हैव टू शट डाउन, मिल बंद हो जाएगी। ठीक है, उसको रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा तो मिल बंद हो जाएगी। कहने का क्या मतलब कि प्राइमरी सेक्टर पे सेकेंडरी सेक्टर डिपेंड करता है। अब फिर आगे देखो इसके सामने क्या लिखा है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ द सेकेंडरी और इंडस्ट्रियल सेक्टर बीइंग डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी। तो ये इंटरडिपेंडेंसी का एक एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है कॉलम में। तो अगर शुगर केन देने से मना कर दे फार्मर किसी शुगर मिल में, तो वो शुगर मिल बंद हो जाएगी, है ना। अगर वो शुगर मिल, और जानते हो ना शुगर मिल जो है वो खास करके शुगर के फार्मलैंड के पास ही होता है, ताकि 2-4 फार्मर मिलके जो शुगर केन प्रोड्यूस कर रहे हैं वो उस मिल में सप्लाई करते हैं। अब मान लो उस मिल में शुगर केन सप्लाई ही नहीं होगा, तो क्या हाल होगी वो सेकेंडरी सेक्टर की, कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है जिसको सर्विस सेक्टर कहते हैं, सॉरी क्या कहते हैं सेकेंडरी सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर कहते हैं, तो ये इंडस्ट्रियल सेक्टर बंद हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल देखो, इमेजिन व्हाट वुड हैपन टू कॉटन कल्टीवेशन इफ कंपनीज डिसाइड नॉट टू बाय फ्रॉम द इंडियन मार्केट एंड इंपोर्ट ऑल कॉटन दे नीड फ्रॉम अदर कंट्रीज। ठीक है ना, अगर अपने कंट्री में तो इतना सारा कॉटन कल्टीवेशन होता है और यहाँ की कंपनी अगर मना कर दे कि हम कॉटन नहीं लेंगे, तो क्या हालत होगी, फार्मर्स की तो बहुत बुरी हालत हो जाएगी। तो उस कॉटन कल्टीवेशन में जो फार्मर्स लगे हुए हैं वो तो बिल्कुल ही बैंकरप्ट हो जाएंगे, है ना, और उनकी बहुत हालत खराब हो जाएगी। और हो सकता है कि, और दूसरा इफेक्ट क्या होगा कि अब अगले साल से वो कॉटन का कल्टीवेशन नहीं करेंगे, वो अपना दूसरी तरफ अटेंशन स्विच ओवर करेंगे, अब व्हीट लगाएंगे, शुगर केन लगाएंगे, दूसरी चीज लगाएंगे, लेकिन कॉटन कल्टीवेशन नहीं करेंगे। लेकिन उस साल के लिए तो उनकी हालत बहुत ही खराब हो जाएगी, इकोनॉमिक कंडीशन। ठीक है, तो ये इसका आउटकम हो रहा है। ठीक है ना, अगर ये दूसरे कंट्री से कॉटन मंगा ले ये सारे कंपनी, तो यहाँ के फार्मर्स की क्या हालत हो जाएगी, वही यहाँ लिखना है। फिर देखो तीसरा एग्जांपल, फार्मर्स बाय मेनी गुड्स सच एज ट्रैक्टर्स, पंप सेट, इलेक्ट्रिसिटी, पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर